Hello friends, very good morning. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes. Today we will see one of the important chapter of CA final, and that is none other but professional ethics from the subject audit. And this chapter carries, as you all know, weightage of 16 marks. And without wasting time, we will start this chapter. But before that, I would like to introduce my classes. My name is Kalp Shah CA classes. And if you have not liked, shared, subscribed, or commented on my channel or my videos, kindly like, share, subscribe this channel, and also comment or comment your opinion or your reviews for my videos on all of the videos, and share it at maximum. We are also running Agarwal Consultants, which is a professional consultancy which we provide company formation, company trademark, ROC compliance, GST return, GST filing, income tax return, income tax filing, income tax planning, and income tax legal matter, as well as GST legal matter. We help you. We also help you for FEMA related compliances, that is foreign exchange, FSSI related compliances, PF and ESI, IC code, digital signature, XBRL, merchant exporting, IBBI valuation, and valuation services, and import export related, finding a buyer or seller. We provide all these services. Here is a glimpse of that. Company incorporation and establishment, trademark, copyright, patents, all kind of intellectual property rights. We can help you to get registered your intellectual property. Then we help you file all your MCA returns, that is ROC, Ministry of Corporate Affairs related returns. Then legal agreement, legal drafting. We will find such a nice contract that you will always win in case of a dispute. And NCLT, NCLAT, then GST return, GST planning, then income tax return, income tax planning, export related guidance, EXIM policies, export import policies 2015 to 20, foreign exchange guidance, then valuation guidance, merchant exporting, buying, then finding buyer and seller, then PF, ESI, which we have newly opened, then FSSI, that is food safety license, and APEDA registration, and every kind of RCMC services we are providing. Now coming to the point, प्रोफेशनल एथिक्स. अब प्रोफेशनल एथिक्स में देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने बोला है पेनल्टी. ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स का ये सीए फाइनल का मॉड्यूल मैंने खोला है. अगर मैं शुरू करूँ तो आगे इसके पेज, बहुत सारे पेज है, लेकिन उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कुछ काम का है. इसमें सिर्फ आप इतना पढ़ सकते हो जो एक बार आप जस्ट फॉर रीडिंग कर सकते हो वन टाइम. लेकिन ये सारा जितना भी कुछ लिखा है उसमें ज़्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है. जहाँ से पूछते हैं, एक मैंने पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया, डिसएबिलिटीज फॉर पर्पज ऑफ मेंबरशिप. सेक्शन 8 ऑफ द सीए एक्ट enumerates the circumstances under which a person is debarred from having his name entered in or born in the register of members. ये आपकी डिसक्वालिफिकेशन है, यानी कि आपको 21 साल आपकी एज नहीं हुई. इफ़ ही हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 at the age of his at the time of his application for the entry, या तो इट इज़ फॉर अनसाउंड माइंड, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये सब तो आपको कॉमन आता है डायरेक्टर्स के भी और या ऑडिटर के भी डिस्क्वालिफिकेशन है. फिर if he is being a discharged solvent has not obtained from a court a certificate stating that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part, यानी कि आपकी जो इंसॉल्वेंसी वो जेन्यूइन थी, आपने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया था इंसॉल्वेंसी में. फिर if has been convicted by a competent court whether with or without India of an offence having moral turpitude and punishable with transportation or imprisonment, or an offence not of a technical nature committed by him in his professional capacity, unless in respect of the offence committed he has either been granted or a pardon on application made by him. यानी कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिससे मॉरल टर्पिट्यूड, यानी कि आपकी मोरालिटी हार्म होती है, और वो अगर वो जो आपने ऑफेंस किया है वो छोटा मोटा ऑफेंस हो, वो टेक्निकल इश्यू रिलेटेड, तो चलेगा, तो आपको डिबार नहीं, तो वरना आप डिबार ही हो अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड वाला ऑफेंस करते हो. अब डायरेक्टली ये सब तो नहीं पूछते. रिमूवल ऑफ नेम, इसमें भी ऐसा कॉमन लिखा है कि आप डैड रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड टू दैट इफेक्ट, आप खुद रिक्वेस्ट करते हो, या फिर आपने प्रिस्क्राइब फीस नहीं पे की, इसका केस लो बन सकता है. आपको बोल रहा है कि आपकी मेंबरशिप फीस नहीं की, तो क्या आपको रिमूव किया जा सकता है. तो सेक्शन 20 के साथ आपका मेंबरशिप के रजिस्टर में से आपका नेम रिमूव किया जा सकता है. हु इज़ फाइंड टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एट द टाइम व्हेन हिज नेम वाज एंटर्ड इन द रजिस्टर or
who at any time thereafter has become subject to any of the disabilities mentioned in section 8, यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी आपने प्राप्त कर ली, इंसॉल्वेंट वगैरह हो गए, तो आपका रिमूवल ऑफ नेम हो सकता है। और अगर आपका फीस ना भरने की वजह से नाम रिमूव हुआ है तो आप फीस भर के फिर से उसे रिन्यू करा सकते हो। और जैसे आप अरियर फ़ी और सारा जितना भी फ़ी पे करते हो वो एक बार पे कर देते हो तो आपका नाम फिर से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 24 ऑफ सीए एक्ट। उसमें क्या कहना चाहता है कि अगर कोई बंदा जो सीए नहीं और खुद अपने आप को सीए बता रहा है और मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर सीए की डिग्री यूज़ कर रहा है तो उसको क्या पेनल्टी होगी। सबसे पहली बार तो कम पेनल्टी है, जेल नहीं भेज रहे, लेकिन जब आप दूसरी बार ये ऑफेंस करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। अल्लाह आओ पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। Section 24 of the CA Act provides that any person who, not being a member of the institute, represent that he is a member of the institute or uses the designation chartered accountant, or being a member of the institute but not having a COP, represent that he is having a COP और प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंट। आपने मेंबरशिप तो ली है लेकिन आपने COP नहीं लिया और फिर भी बोल रहे हैं आपके पास COP है, तो शैल बी पनिशेबल on first conviction with fine which may extend to 1000, on any subsequent conviction with imprisonment which may extend to 6 months और fine which may extend to 5000 और both। पहली बार आपको 1000 रुपये का फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप CA नहीं हुए हो और आप CA की प्रैक्टिस करने लगते हो या फिर CA का डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको 5000 रुपये का फ़ाइन हो सकता है या 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ your conviction. The provision may be understood with a case where the court of additional chief judicial magistrate had by its judgment found that the accused guilty under section 24 subsection 1 clause A and B of the Chartered Accountant Act and section 465 of the Indian Penal Code। आपको जो 465 है चीटिंग का वो भी लग जाएगा। द कोर्ट इम्पोज अ फाइन on the accused and in the event of his failure to pay the fine sentenced to rigorous imprisonment of 3 months। आपको 3 months का imprisonment भी हो सकता है। ये प्रेम बत्रा नाम के केस में ये डिसाइड हुआ था, तो आपको सेक्शन 465 भी लग सकता है, जो इंडियन पिनल कोड का है वो लग सकता है। ठीक है। अब CA इन प्रैक्टिस किसको कहेंगे। अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ। इससे पहले हम ये जो उसकी फाइन है ना उसको मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप नोट्स में लिख सकते हो। देखो वो CA नहीं है और CA का डेजिग्नेशन यूज़ कर रहा है, या फिर COP नहीं है और CA इन प्रैक्टिस दिखा रहा है, नो COP बट ही इज़ अ मेंबर एंड शोइंग दैट ही इज़ हैविंग COP। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में पहला क्राइम किया, फर्स्ट कन्विक्शन, तो आपको 1000 रुपये का फ़ाइन देकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरे इंस्टेंस में 5000 का फ़ाइन और 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और बोथ। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको अगर 465 लग गया, सेक्शन 465 ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो फिर वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि आपका क्या होगा। उसमें ज़्यादातर 3 मंथ्स की rigorous be imprisonment. The court impose a fine and accused and in the event of his failure to pay the fine sentence to rigorous imprisonment। अगर फाइन नहीं पे किया तो आपको rigorous imprisonment हो सकता है। तो आपको ये खास नोट डाउन कर लेना है। अगर आप CA नहीं हो और CA दिखा रहे हो तो आपको इस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 1000 रुपये पहली बार छोड़ दिया जाएगा लेकिन अगर आप दूसरी बार करते हो तो 5000 और 6 महीने की आपको सज़ा भी हो सकती है। तो कृपया मेरी आपसे विनती है, अगर आप CA नहीं हो तो CA का डिग्री मत यूज़ कीजिए। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट इज़ अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इज होल्डिंग COP। CA इन प्रैक्टिस बनने के लिए आपको सबसे पहले मेंबर बनना पड़ेगा और फिर COP लेनी पड़ेगी, सिंपल सा है। एंड इंक्लूड सच मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हु आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द CA एक्ट। और डीम्ड टू बी प्रैक्टिस भी CA बताए गए हुए हैं। जो डीम्ड टू बी प्रैक्टिस, इसके नीचे उसका लिस्ट है, मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, उसको भी CA इन प्रैक्टिस ही मानते हैं। उससे पहले उन्होंने जो केस लॉज बताए वो पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ
significance of the certificate of practice. A member who is not in practice is precluded from accepting engagement to render services of any of the types normally prescribed as a chartered accountant. जो भी सीए की सर्विसेज है, ऐसी कोई भी सर्विस नॉर्मली जो ऑडिटिंग की सर्विस होती है, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वो कोई भी सर्विसेज आप नहीं दे सकते हो, फिर भी आप भले ही आप मेंबर हो. अ मेंबर वो इज़ नॉट इन प्रैक्टिस, आप मेंबर हो लेकिन आपने सीओपी नहीं ली, तो सीए के नाम पे जो भी सर्विसेज लोगों के मन में होती है ऐसी कोई भी सर्विस आप नहीं ले सकते. इवन दो फॉर डूइंग सो ही डज नॉट रिक्वायर स्पेशल क्वालिफिकेशन, भले ही आपको उस सर्विस देने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं. से फॉर एग्जांपल आप सीए बन गए, आप मेंबर बन गए, लेकिन आपने मेंबरशिप नहीं ली और फिर आप रिटर्न भरना चाहते, लोगों के जीएसटी रिटर्न का ही काम करना चाहते हो, तो भी आप जीएसटी रिटर्न का काम नहीं कर सकते. जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. फिर भी आप ये ऑडिट एंगेजमेंट, सॉरी, ये रिटर्न फाइलिंग के एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप मेंबर हो. अगर आप नॉर्मल बंदे होते तो आप और नॉर्मली किसी का भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत बीकॉम लेवल का नॉलेज और जीएसटी का बेसिक नॉलेज आपने लिया हुआ है. लेकिन आप मेंबर हो लेकिन आपने सीओ और सीओपी नहीं ली, तो फिर आप जीएसटी का काम नहीं कर सकते, इनकम टैक्स का नहीं काम कर सकते, क्योंकि आपके पास मेंबर सीए की डिग्री है. तो लोग क्या मानेंगे, लोग के मन में तो ऐसे लगे कि सीए तो सीए इन प्रैक्टिस ही होगा, तो आपको सी एन प्रैक्टिस मान के काम देंगे. लेकिन आप सिर्फ मेंबर हो, सी एन प्रैक्टिस नहीं ली, क्योंकि सी ओ पी आपने नहीं ली, तो आप सी एन प्रैक्टिस नहीं बने. वंस द पर्सन कंसर्न बिकम्स अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ही इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इट्स रेगुलेशन. आप एक बार मेंबर गए, वंस अ मेंबर ऑलवेज अ मेंबर, ऐसा होता है. वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर, वंस अ म्यूजिशियन ऑलवेज अ म्यूजिशियन, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड. इस तरह वंस अ पर्सन इज मेंबर ऑलवेज अ मेंबर, और उसको उसकी सारे जो भी प्रोविजंस है उसको पालन करना पड़ेगा. इफ एंड व्हेन ही अपीयर्स बिफोर द इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल एज एन इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर हैविंग बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, he could so appear only in his capacity as a chartered accountant and a member of the institute. अगर आप एक बार कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने या जीएसटी अथॉरिटी के सामने एक बार आप मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट के तौर पे पेश आ गए, तो अगली बार भी अगर आप पेश आते हो तो आपको सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर मान के ही पेश आना पड़ेगा. हैविंग एज इट वर brought himself within the jurisdiction of the chartered accountant regulations, he could not set them at naught by contending that even though he continues to be a member of the institute and has been punished by the suspension from practice as a member, he would be entitled in substance to practice in some other capacity. आपको सस्पेंड कर दिया गया है सी एक्ट के तहत, आप अभी भी मेंबर हो, लेकिन आपका जो सीओपी है वो सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई जीएसटी कोर्ट में या इनकम टैक्स कोर्ट में आपको अपीयर होने के लिए सीए की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं. फिर आप अपीयर होकर ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं भले ही सीए के लिए सस्पेंड हो चुका हूँ लेकिन अब मुझे अपीयर करने दो, क्योंकि अब आप एक बार सीए के लिए सीए के तौर पे पेश हो गए तो आपको हर बार आप सीए ही मानो जाओगे. क्या लिखा है, if and when appears before the income tax tribunal when he appears before the income tax tribunal as an income tax representative, आप एक क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव बन गए. आफ्टर हैविंग बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ही कुड सो अपीयर ओनली इन हिज कैपेसिटी एज अ सीए. एक बार आपने एज अ रिप्रेजेंटेटिव में सीए दिखा दिया तो अगली बार की भी आप सीए ही हो सकते हो. अब फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि अब मुझे अपीयर करने दो, मैं सस्पेंड हुआ, तो क्योंकि अपीयर करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी इनकम टैक्स लॉ के तहत, उसमें सी होने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप एक बार बोल दिए कि मैं सी हूँ तो फिर अगली बार भी सी ही बोलना पड़ेगा. ही कुड नॉट सेट हैविंग एज इट वर ब्रॉट हिमसेल्फ विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सीए एक्ट एंड रेगुलेशन, ही कुड नॉट सेट देम एट नॉट बाय कंटेंडिंग दैट इवन दो ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड हैज हैव बीन पनिश्ड by suspension from a practice as a member, he would be entitled in substance in practice in some other capacity. आपकी फिर कोई भी अदर कैपेसिटी नहीं हो सकती, आपकी सिर्फ एक कैपेसिटी हो सकती है सीए. A member in the institute can have no other capacity in which he can take out such practice separate from his capacity to practice as a member of the institute. Therefore,
In a nutshell, chartered accountant whose name has been removed from the membership of or for professional on and or misconduct during such period of removal will not appear before the various tax authorities or other bodies before whom he could have appeared in his capacity as a member of the institute. इसका केस लो भी दिया गया है। अगर आप जब आपका सस्पेंशन है और रिमूवल हुआ है तो रिमूवल के दौरान या सस्पेंशन के दौरान आप किसी और कैपेसिटी में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जीएसटी अथॉरिटीज़ या कोई भी लीगल अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बार पहले सीए थे और आपने एज अ सीए अपीयर कर दिया है, तो सबके मन में तो क्या है, आप सीए हो, बड़े साहब हो। A chartered accountant in practice has been suspended from a practice for a period of 6 months and has surrendered his certificate of practice for the said period. During the said period of suspension, though the member did not undertake any audit assignment, he undertook representation assignments for income tax whereby he would appear before the income tax authorities in a capacity of a CA. क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, कि हमने आगे ही पढ़ा है। In the instance, CA would not be allowed to represent before the income tax authorities for the period he remains suspended. Accordingly, in the present case, he is guilty of professional misconduct. यहाँ पे भी लिखा है, इफ़ ही अपीयर्स बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी ही इज़ ओनली डूइंग सो इन हिज कैपेसिटी इज अ सीए एंड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैविंग बाउंड बाय हिमसेल्फ बाय द एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन मेड देयरअंडर he cannot then set the regulation at naught by contending that even though he continues to be a member and is punished by suspension, he would be entitled to practice in some another capacity. वो उनके जो रेगुलेशंस और सीए के जो एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको वो सेट असाइड नहीं करता, सेट एट नॉट, यानी कि आप उसको भूल नहीं सकते। आप एक बार सीए बन गए तो आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस हमेशा ही लागू पड़ेंगे। तो ये जो उन्होंने बताया कि आप वंस अ सीए ऑलवेज अ सीए इवन इफ़ यू आर सस्पेंडेड, उसके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था मई 2018 के 5A में। तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं, मई 2018 5A का पेपर, मई 18 5A यहाँ पे मिलेगा आपको। ये Mr. Dice, a practicing chartered accountant, was to surrender his certificate of practice and he was suspended for 1 year on certain professional misconduct against him. During the period of suspension, Mr. Dice, designating himself as GST consultant, did the work of filing GST returns and made appearance as consultant before various related authorities. He contended there is nothing wrong in as he, like any other GST consultant, could take such work and his engagement as such in no way violate the order of suspension inflicted on him. Is he right in his contention? देखो पहले क्या, वॉज ऑर्डर टू बी सरेंडर ही COP, यानी कि वो पहले एक बार तो CA हो गया एंड ही वॉज सस्पेंडेड फॉर 1 year। तो सस्पेंशन के दौरान क्या वो वेरियस लीगल अथॉरिटीज़ के सामने अपीयर कर सकते किसी दूसरी कैपेसिटी में जो वो लॉ के तहत अलाउड हो। से फॉर एग्जांपल जीएसटी लॉ ऐसा अलाउड करता है कि कोई बंदा सीए नहीं हो और कोई दूसरी कैपेसिटी में भी वो अपीयर हो सकता है, तो क्या वो दूसरी कैपेसिटी अलाउड है? एक बार आप सीए बन गए, जी नहीं, अलाउड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था वो मई 2018 में 5A में पूछा गया था। अब इसका आंसर हम देखते हैं। मई 2018 5A ऑडिट, उसमें सजेस्टेड में न्यू कोर्स मई 2018 5A। जी रहा, मिस्टर डाइस, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वॉज ऑर्डर टू सरेंडर। अब उसका आंसर पढ़ते हैं, इतना बड़ा आंसर लिया हुआ है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन नॉट टेक अप एनी वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ a chartered accountant not holding COP cannot take up any other work in the capacity of chartered accountant in practice because it would amount to violation of the relevant provision of the CA Act. In case a member is suspended and is not holding COP, he cannot in any other capacity take up any practice separable from his capacity to practice as a member of the institute. एक बार आप CA हो गए तो आप ऑलवेज ही CA कहलाओगे। फिर आप आपके पास भले ही COP नहीं है, आपका COP सरेंडर है, तो या फिर आपने सस्पेंड कराया है, सॉरी COP सस्पेंड करा है, तो आप फिर
किसी दूसरी कैपेसिटी में काम नहीं ले सकते, जैसे जीएसटी रिटर्न, जीएसटी अपीयरेंस का काम नहीं ले सकते. दिस इज बिकॉज वंस अ मेंबर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ही इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ सीए एक्ट 1949 and its regulation. In case he files a GST returns and appears as a consultant before various related authorities in his capacity as a chartered accountant and a member of the institute, having bound himself by the said act and its regulation, he cannot then set the regulation at naught. यानी कि आप जो आप पहले नियमों का पालन कर रहे थे, आप बोल रहे कि अब मैं इस नियमों का पालन नहीं करूँगा, इस सारे नियमों को मैं नेवे रख दूंगा. नेवे यानी कि क्या बोलते हैं उसको, शेल्फ में रख दूंगा, मालिए पे रख दूंगा. एट नॉट बाय कंटेंडिंग दैट इवन दो ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर एंड ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय द सस्पेंशन, ही वुड बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सम अदर कैपेसिटी. ये उसका कंटेंशन गलत है. बट इफ ही इज डूइंग सो इन एनी अदर कैपेसिटी सच एज जीएसटी कंसल्टेंट वेर इन हिज कैपेसिटी इज नॉट सीए, इन प्रैक्टिस ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. In the instance case, Mr. Dice was practicing chartered accountant and he was ordered to surrender his COP and was suspended for 1 year. Mr. Dice is doing the work of filing returns and has appeared as a consultant before various related authorities as GST consultant, which is not in the capacity of practicing CA, rather in the capacity of authorized representative. Any person who has been authorized to act as a GST practitioner on behalf of the concerned registered person can become authorized representative. Thus, Mr. Dice would not be allowed to represent as a CA before various related authorities for the period he remains suspended. Accordingly, in the present case, he is guilty of professional misconduct. ठीक है, तो वो जो रिटर्न फाइल कर रहा है उस वजह से वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में नहीं है, लेकिन जो दूसरी अथॉरिटीज़ के पास वो अपीयर होता है ना, उसके लिए वो गिल्टी हो गया है और उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज लग गया है. अब आगे बढ़ते सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से. ये एक केस था मैं जो आपको बताना चाहता था. इसमें से भी पूछते, आप ऐसा मत समझिए कि डायरेक्ट आप प्रोफेशनल एथिक्स से शुरू करेंगे. अब आपको यहाँ से भी पूछने का शुरू कर दिया उन्होंने. कैंसलेशन हो सकता है आपका COP इन केसों में. मेंबर हैज़ नॉट पेड फीस, सीज टू बी प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, या फिर द नेम ऑफ द होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर, या फिर आपका जो है आपने रिमूव करा दिया है नाम. ये सारे ये तो आप सिर्फ पढ़ सकते हो. फिर मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस. एवरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एंटाइटल्ड टू डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज अ CA. देयर आर 2 classes of member, those who are in practice and those who are otherwise occupied. In section 2 subsection 2, the term deemed to be in practice has been defined as follows. A member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with CAs in practice or in partnership with members of such other recognized professionals may be prescribed. He in consideration of the remuneration received or to be received. ये इतने काम करता है तो उसको डीम टू बी प्रैक्टिस मान लिया जाएगा. एंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी. आप अकाउंट लिखते हो लोगों का, और भले ही आपने COP नहीं तो भी आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा. CA बनने के बाद अकाउंट लिखना मतलब CA इन प्रैक्टिस होना. ऑफर्स टू परफॉर्म सर्विस इन्वॉल्विंग द ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, books, accounts or records, or the preparation, verification and certification of financial accounting and related statements, or holds himself out to be as a public accountant. आप पब्लिक में बोलते हो मैं पब्लिक अकाउंटेंट हूँ, और लोगों के आप जो ऑडिट वगैरह सर्विस देते हो, वाउचर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह करके दे रहे हो, भले भी आपके पास COP नहीं है और आप पूरा ऑडिट का ही काम कर रहे हो, तो क्या आप ऑडिटर नहीं कहलाओगे? बिल्कुल कहलाओगे. और आप COP भले ही नहीं ली, लेकिन आप
डीप सीए इन प्रैक्टिस माने जाओगे ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विस इन इन्वॉल्विंग द ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप ऑडिटिंग कर रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, बुक्स का ऑडिटिंग कर रहे हो, बुक्स का वेरिफिकेशन कर रहे हो, आप रिकॉर्ड्स का ऑडिटिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड्स का आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस ही माना जाएगा। रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज और असिस्टेंस इन और अबाउट मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और डिटेल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर और द रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट ऑफ डेटा। रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज और असिस्टेंस इन और अबाउट मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और डिटेल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर और रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स और डेटा। आप लीगल यानी कि आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो या प्रोफेशनल असिस्टेंस दे रहे हो अकाउंटिंग प्रोसीजर के रिलेटेड, या अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड करने का आप सारे से आपको जनरल एंट्री करना सिखाते हो, या कोई सॉफ्टवेयर सिखाते हो, टैली जैसा सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हो या इंड एयर सिखाते हो, तो आप सीए इन डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस ही मान लिए जाओगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस और असिस्टेंस इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और डिटेल्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर और द रिकॉर्डिंग और द प्रेजेंटेशन और द सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स और डेटा कर रहे हो। तो आप अकाउंटिंग डेटा के रिलेटेड या फाइनेंशियल डेटा के रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो जिसमें आप उसको हेल्प कर रहे हो प्रोसीजर में रिकॉर्ड करने में, तो आप सीए इन प्रैक्टिस मान लिए जाओगे। रेंडर सच अदर सर्विसेज एज इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर or may be rendered by a CA in practice, and the words to be CA in practice with its grammatical variation and cognate expression shall be construed accordingly. Grammatical variation यानी कि CA is in practice, CA was in practice, CA is being in, has been, वो भी ग्रामर के सारे वर्जन। और कॉग्नेट एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कोई एक वर्ड होता है जो ओरिजिनल किसी दूसरी लैंग्वेज में आता है लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग आप निकाल सकते हो। जैसे कि इंग्लिश भाषा है वो ग्रीक और लैटिन में से उसका उद्भव हुआ है, उसका ओरिजिन हुआ है, और हमारी जो भाषा है गुजराती, हिंदी वगैरह वो संस्कृत में से आई है। तो जो संस्कृत मूल वर्ड होता है ना उसके संस्कृत में धातु कहते हैं, और वो धातु में से जो भी क्रियापद आते हैं, वर्ब्स आते हैं, इसी तरह उसको कॉग्नेट एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे गम, गम में से गच्छ, गच्छ यानी जाना, गम एक धातु है, गच्छ संस्कृत वर्ड है और उसमें से जाना ये वर्ड गुजराती, हिंदी सारी भाषा में आया है, जऊ, गच्छ। तो ये कॉग्नेट एक्सप्रेशंस को भी आप इसी तरह से मानना है, ठीक है। एन एसोसिएट और अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट हु इज सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस और firm of such chartered accountant or firm consisting one or more chartered accountant members of any other professional body having prescribed qualification notwithstanding such employment be deemed to be in practice for the limited purpose of training of article assistance। ये क्या माना गया है कि आप किसी सीए के वहाँ आप सीए हो गए, अब आपने प्रैक्टिस खुद की नहीं चालू की लेकिन किसी दूसरे के वहाँ जॉब कर रहे हो, सीए इन प्रैक्टिस के वहाँ को जो दूसरा सीए इन प्रैक्टिस है उसके पास सीओपी है, तो आपको क्या माना जाएगा, आपको भी सीए इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए, आर्टिकल्स रखने के लिए। यानी कि ये तो सीए जो है बन गए उनके स्वार्थ की मैटर की बात है कि भैया आप किसी दूसरे सीए को आप एज एम्प्लॉय भी ले रहे हो लेकिन उसके नाम के आर्टिकल्स से आप तो काम ले ही रहे हो, उसके नाम का आर्टिकल्स का भी बेनिफिट आप ले रहे हो। तो ये तो इंस्टीट्यूट ने परमिट किया है, लेकिन ये तो आर्टिकल्स बढ़ाने की बात हो गई, कम पगार वाले और कम तनख्वाह वाले लोगों को बढ़ाने वाली बात हो गई। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसके पास उसकी लिमिट है आर्टिकल की 5 और वो एक दूसरे सीए को एम्प्लॉयमेंट में रखता है और उसकी भी 5 है, तो 5 और 5 10 हो जाएगी। भले वो बंदा जो दूसरा मिस्टर बी आया मिस्टर ए के वहाँ जॉब कर रहा है वो सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेनिंग आर्टिकल्स के लिए वो आर्टिकल को ट्रेन कर सकता है और आर्टिकल से कम सैलरी में बहुत सारा काम करा सकता है, या कम स्टाइपेंड, वेतन, सैलरी बोलो, वेतन बोलो, रेम्यूनरेशन बोलो, इमोल्यूमेंट्स बोलो, कंपेंसेशन बोलो, जो भी बोलो, लेकिन कम है। 3 साल तक मेरे ख्याल से तो इंडिया में इतनी लंबी ट्रेनिंग ही नहीं होनी चाहिए। 3 साल, जिंदगी कितनी छोटी, उसमें भी 3 साल की ट्रेनिंग फोकट की करने की। आपका क्या मानना है, आप भी उसका ओपिनियन आप देख सकते हो। मेरे ख्याल में मोदी जी को और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को इसको अमेंडमेंट करना चाहिए और ट्रेनिंग 1 या 1.5 साल की होनी चाहिए, जिसमें भी आपको जिस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और सीए की डिग्री लेने के बाद भी प्रैक्टिस ये ट्रेनिंग लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है।
इसमें तो मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स का भी वायोलेशन होता है, एक्सप्लोटेशन वगैरह होता है। अब वो आप सब तो जानते ही हो, लेकिन जो चलता है वो चलने दो। द काउंसिल हैज पास pursuant to section 2 subsection 2 uh, about the council has passed a resolution permitting a chartered accountant practice to render the entire range of management consultancy and other services। आप दूसरी कोई काम नहीं कर सकते सीए के बाद। इसमें आपको फर्स्ट शेड्यूल में आएगा, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engages himself in any other business or occupation other the profession of CA अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। यानी कि आप कोई भी आपके पास सीए, आप सीए इन प्रैक्टिस हो तो कोई भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन विदाउट परमिशन ऑफ काउंसिल या विदाउट परमिशन ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज है वो पूरे सीए की सर्विसेज में ही आएगी। द एक्सप्रेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड द फंक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी और पीरियडिकल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, direct tax audit, GST audit, customs audit if any, representation or advice concerning the tax matter or acting as liquidator, trustee, administrator, arbitrator, receiver, but shall include the following। अब अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो उसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं मानी जाएगी, वो टैक्स ऑडिट पूरा टैक्स ऑडिट ही कहलाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है। लेकिन इन सारी सर्विसेज आप जो कर सकते हो उसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के तहत अलाउड किया है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन, क्या उसमें पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, यानी क्या होगा सीए इंटर, सीए फाइनल के जितने कॉस्टिंग के और एफएम के चैप्टर है और कुछ थोड़े बहुत अकाउंट के उसके नाम लिख लो। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडवाइस रिगार्डिंग रेजिंग फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आईपीसीसी का चैप्टर, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़, बजटिंग का चैप्टर कॉस्टिंग में, प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आईपीसीसी का चैप्टर, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बजटिंग इंक्लूड कैपिटल बजट्स एंड रेवेन्यू बजट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंड एस 2, या तो फिर आप आईपीसीसी में भी आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईओक्यू मेथड से, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, मार्केट रिसर्च एंड डिमांड स्टडीज़। आप मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो, लोगों को जाकर पूछ सकते हो कि मार्केट में क्या है, मार्केट में आप सर्वे कर सकते हो, उसको मार्केट रिसर्च कहते हैं। प्राइस फिक्सेशन, मार्केट रिसर्च का से फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो उसको पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, तो आप आपकी फर्म में ऐसे बंदे को एम्प्लॉय करके मार्केट रिसर्च करवा सकते हो। एंड डिमांड स्टडीज़, किस चीज़ की क्या डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई शैम्पू लॉन्च करना चाहते हो तो आप 100 लेडीज़ को पूछ सकते हो कि आपको किस प्रकार का शैम्पू पसंद है, आप हेड एंड शोल्डर में क्या गलती है या फिर आपको क्या कमी लग रही है। प्राइस फिक्सेशन अदर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, कोई कंपनी प्राइस फिक्स नहीं कर पा रही है तो उसको आप मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड प्लस फीस कॉस्ट का कुछ ऑब्जॉर्प्शन और उसमें को थोड़ा प्रॉफिट ऐड करा के प्राइस फिक्स करा सकते हो। जैसे कॉस्टिंग का आप नॉलेज यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी को आप वेरिएबल कॉस्ट पे भी बेचने के लिए हेल्प कर सकते हो, जो आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग का चैप्टर है। इसमें अगर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है और आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स है तो आप वेरिएबल कॉस्ट पे भी उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट तो आपका रिकवर होना ही चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कंट्रोल एंड वैल्यू एनालिसिस, कंट्रोल मेथड्स एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये आप याद रखिए। पर्सनल रिक्रूटमेंट में सवाल पूछा जाता है, वो हाल ही में ऐड कर दिया गया है। सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान्स, वेजेस इंसेंटिव प्लान्स एट्सेट्रा। आप एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस प्लान बना रहे हो, एम्प्लॉयज़ इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको 10% सैलरी का बोनस मिलेगा वगैरह, आप प्लान बना सकते हो। वेज इंसेंटिव प्लान्स, अगर वेज जो वर्कर्स है आपकी प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जैसे डायमंड, जिसमें डायमंड बनाने में वर्कर की स्किल्स का बहुत ही महत्ता रहती है, तो उसको भी आप हेल्प कर सकते हो कंपनी को वेज इंसेंटिव प्लान बनाने में। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस एंड एडवाइस रिगार्डिंग अमालगमेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस आप कर जरूर सकते हो, लेकिन अब बहुत सारा वैल्यूएशन आईबीबीआई का जो रजिस्टर्ड वैल्यूएशर होता है वो ही कर सकते हैं, वो सर्विस उसके अलावा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आईबीबीआई की 50 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और सीएस बनने के बाद, आईसीडब्ल्यू बनने के बाद, या फिर बीकॉम के बाद 5 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप कर सकते हो। एमकॉम के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर बिजनेस पॉलिसी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन,
organizational structure, behavior, development of human resources including design and conduct of training programs. आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो ह्यूमन रिसोर्स को. वर्क स्टडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवेल्यूशन, system analysis and design, computer related services including selection of hardware and development of services, software in all areas of services which can otherwise be rendered by a chartered accountant in practice, and also to carry out any other professional services relating to EDP. Acting as an advisor or consultant to an issue including such matter as drafting of prospectus and memorandum containing salient features, या फ्यूचर्स नहीं है, फीचर्स, FEA फीचर्स. तो आपको FU की जगह FEA फीचर्स, ये FU की जगह FEA मानना है. of prospectus, drafting and filing of listing agreement and completing formalities with stock exchange, register of companies and SEBI. अगर नई कंपनी का कोई आप प्रोस्पेक्टस बना रहे हो तो प्रोस्पेक्टस भी आप ड्राफ्ट कर सकते हो, या MOA वो भी आप बनाने में कंपनी को हेल्प कर सकते हो. उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट, एडवाइस रिगार्डिंग अरेंजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ वन एडवर्टाइजमेंट सेंटर्स. आप एडवाइस भी दे सकते हो एड मीडिया के लिए रिलेटेड सेंटर्स फॉर होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ब्रोकर्स, इन्वेस्टर एटसेट्रा, बैंकर्स टू इश्यू, कलेक्शन सेंटर, ब्रोकर्स टू इश्यू, अंडर राइटर्स एंड द अंडर अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. अंडर राइटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो लेकिन आप अंडर राइटर्स नहीं बन सकते हो. अंडर राइटिंग कमीशन आप नहीं खा सकते हो, वो नीचे आएगा. ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक, और उसमें भी क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट एंड एडवाइस रिगार्डिंग द अरेंजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ. आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हो कि किसको अंडर राइटर बनाना है और क्या क्या अंडर राइटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन आप खुद अंडर राइटर नहीं बन सकते. इसमें केस लॉ बन सकता है. एडवाइस रिगार्डिंग द अरेंजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ एड मीडिया, सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स फॉर होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, सिलेक्शन ऑफ बैंकर्स टू इश्यू. आप खुद बैंकर्स टू इश्यू नहीं बन सकते, आप कलेक्शन सेंटर नहीं बन सकते, आप ब्रोकर्स टू इश्यू नहीं बन सकते, लेकिन या अंडर राइटर्स नहीं बन सकते, लेकिन आप उसमें एडवाइस दे सकते हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिसिटी मटेरियल एंड इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस और ब्रोचर एंड डिसाइडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ इश्यू मटेरियल, क्वांटम इश्यूइंग मटेरियल. इसमें आपको मैं नीचे बता देता हूँ कहाँ लिखा है कि आप नहीं बन सकते. यहाँ पे लिखा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकिंग, अंडर राइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आर प्रोहिबिटेड. ब्रोकिंग, अंडर राइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आप किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, इसके शेयर्स कुछ बिकवा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बिकवा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, रिलायंस बेच दो, SBI कार्ड खरीद लो, और टाटा बेच दो, ये वो खरीद लो, ये सब नहीं चलेगा. और अंडर राइटिंग भी आप नहीं कर सकते. अंडर राइटर्स के लिए सिलेक्शन के लिए आप सलाह दे सकते हो, इसको सिलेक्ट करो ऐसा. आप एडवाइस ऑन पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज दे सकते हो, फॉलो अप स्टेप्स विच इंक्लूड लिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट्स, रिफंड्स विद द वेरियस एजेंसी, ये सब कर सकते हो. लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग और ब्रोकिंग नहीं कर सकते. फिर इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एज डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स and other financial instrument. In doing so, relevant provisions of the code of ethics must be kept in mind. आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी दे सकते हो लेकिन पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको पूरे दिन शेयर बाजार में ही ध्यान रखना पड़ता है. आप CA की प्रैक्टिस फिर नहीं कर पाते हो. GST में क्या अपडेट आया, इनकम टैक्स में क्या अपडेट आया, वो सब नहीं ले पाओगे. एक्टिंग एज अ रजिस्टर टू एन इश्यू फॉर ट्रांसफ़र और अदर सिक्योरिटीज़, वो भी सेम है. उसमें भी आपको अदर कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखना है. रजिस्टर टू एन इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. फिर क्वालिटी ऑडिट कर सकते हो, एनवायरनमेंट ऑडिट कर सकते हो, एनर्जी ऑडिट कर सकते हो, एक्टिंग एज अ रिकवरी कंसल्टेंट इन द बैंकिंग सेक्टर कर सकते हो, इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी कर सकते हो, अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट
authority including insurance brokerage. फिर ये आप एक बार पढ़ लो, स्क्रीन पे है। क्या हम रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं? आप बन सकते। रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, कर सकते हैं। इसमें कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, नॉट गिल्टी, क्योंकि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर ही आता है। उसमें लिखा है पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्सनल यानी कि आप स्टाफ सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हो, किसको सिलेक्ट करना किसको नहीं करना। पर्सनल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डिजाइनिंग एंड कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देख सकते हो। जनरली सीए अगर कोई ट्रेनिंग देते हैं तो अकाउंट्स कैसे लिखना उसके रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकते हैं। वर्क स्टडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवेल्यूशन एंड इवेल्यूशन ऑफ द वर्कलोड्स। फिर कोई कंपनी सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, वो तो बहुत सी जाहिर सी बात है, तो वो हम पढ़ते हैं। सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन और आउटसाइड इंडिया शैल प्रैक्टिस एज अ सीए। फिर द टर्म कंपनी शैल इंक्लूड एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच एज अ कंपनी एज इट्स पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। अगर आप एलएलपी हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एलएलपी में कोई आपका एक भी पार्टनर कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इफ कंपनी कॉन्ट्रावेंस दिस प्रोविजंस देन without prejudice to any other proceedings which may be taken against the company, every director, every manager, every secretary and other officer thereof who is knowingly a party to such contraventions shall be punishable with a fine which may extend to first conviction 1000 and subsequent conviction 5000. Once section 141 subsection 2 says that where a firm including a limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, then only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. On thoroughly studying the provisions of the Act, the LLPs, though allowed to be appointed as an auditor in accordance with the Companies Act, however, it cannot be engaged into practice if it has a company as its partner as per the चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इन 1949। ये अच्छा सा केस बन सकता है कि आपके पास कोई एलएलपी है, वो किसी सी एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन उस एलएलपी का एक पार्टनर किसी कोई कंपनी है, एलएलपी की फंडिंग किसी कंपनी ने की है, तो वो नहीं चलेगा। फिर आप सीए के अलावा कोई डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते। Member in practice prohibited from using a designation other than CA. The member of the institute are now permitted to use the word CA as prefix before their name, irrespective of the fact they are in practice or not. आप COP लिए हो या नहीं लिए हो, लेकिन आप CA लिख, लेकिन आप CA नहीं हो, CA इंटर हो या CA आर्टिकलशिप कर रहे हो और फेसबुक में लिख रहे हो CA, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। अंडर सेक्शन 7 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, a member in practice cannot use any designation other than that of a chartered accountant, nor can he use any other description, whether in addition thereto or in substitution therefore. But a member who is not in practice and does not use the designation of a CA may use any other description. अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो और CA आगे लगा नहीं, CA डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कोई दूसरा भी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, जैसे परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008, या फिर जो भी लिखना हो, एमएलए एमपी तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा डेजिग्नेशन नहीं लिख सकते कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक या फिर जो भी आप लिखते हो एक्स्ट्रा। नेवरथलेस अ मेंबर इन प्रैक्टिस में यूज एनी अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ अकाउंटिंग बॉडी विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। आप अकाउंटिंग बॉडी से उसका मेंबरशिप लिख सकते हो, जैसे कि आप सीपीए किए हो या फिर कुछ अकाउंटिंग बॉडी जो अप्रूव किए उसका लिख सकते हो। और bodies other than accounting institutes so long as such use does not imply adoption of designation or does not amount to advertisement or publicity, जिससे एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो अ मेंबर कैन नॉट डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज द कॉस्ट अकाउंटेंट बट ही कैन यूज द लेटर्स AICWA आफ्टर हिज नेम व्हेन ही इज अ मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट।
अगर आप उसके COP नहीं ले सकते, अगर आप CA की COP लिए तो फिर AICWA वाले आपको उसकी CA के साथ इसकी COP अलाउड नहीं करेंगे। हालांकि CA वाले तो अलाउड करते हैं, अब CA की भी COP लो और AICWA की भी ICWA की भी लो, लेकिन ICW और CS वाले वाइस वर्सा परमिट नहीं करते। तो फिर आप AICW लिख सकते हो। इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर अ CA टू स्टेट ऑन हिज प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट दैट ही इज एन इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट कंसल्टेंट और अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगर आप CA हो तो फिर आपको ये कुछ लिखना नहीं है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी। आप CA हो तो सिर्फ CA ही लिखना है। इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर CA, हाँ ये तो मेंबर आर अलाउड टू अपीयर बिफोर द वेरियस अथॉरिटीज इंक्लूडिंग कंपनी लॉ बोर्ड, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटीज और अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल दैट इज नाउ GST ट्रिब्यूनल where the law has permitted the same. So far as the designation corporate lawyer is concerned, the council was the opinion that as per the existing provision, CA in practice is not entitled to use the word or the designation corporate lawyer. आप corporate lawyer का विरोध नहीं लिख सकते. Further, in the members are not permitted to use initial CPA on their visiting card. CPA भी नहीं लिख सकते. हाँ, लेकिन अदर बॉडी जो अकाउंटिंग बॉडीज है, इंस्टीट्यूशन है, उसका लिख सकते हो। यहाँ पे वो लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, लेटेस्ट डिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ अकाउंटिंग बॉडीज विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। फिर मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच के लिए एक बहुत सारा केस लॉ बार बार पूछा जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स इसके नीचे यहाँ से शुरू करें उससे पहले ये आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ब्रांच कितनी ब्रांच रख सकते हो और कैसे रख सकते हो। तो ब्रांच का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ मोर देन वन ऑफिस इन इंडिया। इफ अ CA इन प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ CA हैज़ मोर देन वन ऑफिस इन इंडिया, ईच ऑफ सच ऑफिस शुड बी इन अ सेपरेट चार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। समझ लो आपके पास अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई 3 ब्रांच है, तो हर एक ब्रांच में एक CA तो होना ही चाहिए, एक इंचार्ज ऑफ दैट ब्रांच होना चाहिए, उस मेंबर के पास उसका चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक ब्रांच मुंबई में और एक अहमदाबाद में, और मुंबई ब्रांच में से आप सारा ऑपरेट कर रहे हो और अहमदाबाद ब्रांच में आर्टिकल बिठा रखे या MCOM बिठा रखे। एक बंदा तो होना ही चाहिए अहमदाबाद हर एक ब्रांच में जो CA हो, जो CA इन प्रैक्टिस हो। फर्दर ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर failure on the part of a member or firm have a member in charge of its branch and a separate member in case of each of branches where there is more than one would constitute professional misconduct। अगर आप एक ही ब्रांच है आपकी तो आप अपने ब्रांच में ही नहीं जाते हो तो फिर कैसे चलेगा। या फिर आपके पास दो से ज़्यादा ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच में अलग से इंचार्ज CA नहीं रखते तो भी नहीं चलेगा। वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए, हर एक ब्रांच में एक बंदा तो मिनिमम होना चाहिए। अब ये हिली, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन दिए गए, वो हिली एरियाज़ के लिए है। हिल एरिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, वो बाद में पढ़ते। उससे पहले ये जो 50 किलोमीटर वाला वो पढ़ ले। इट इज़ नेसेसरी to mention that the CA in charge of the branch of another firm should be associated with him or with the firm either as a partner or as a paid assistant. If he is a paid assistant, he may be in whole time employment with him. आप जो कोई भी ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच और मुंबई ब्रांच, आपकी हेड ब्रांच है मुंबई ब्रांच, आपकी ब्रांच खोलते हो अहमदाबाद में, तो आप अहमदाबाद में एक CA इंचार्ज होना चाहिए और वो बंदा या तो CA आपका पार्टनर होना चाहिए या तो फिर पेड असिस्टेंट होना चाहिए और वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ रहना चाहिए। फिर वो 2 घंटे आता हो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे ज़्यादातर दवाइयों की दुकान में ऐसा होता है, दवाई की दुकान में एक जो केमिस्ट होना जरूरी है, लेकिन वो केमिस्ट 2 घंटे ही आता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे पूरे टाइम में इंचार्ज बैठाना पड़ेगा। However, a member can in charge of 2 offices if they are located in one and the same accommodation. In this context, some of the council decision are as follows. आप एक ही अकोमोडेशन, एक ही ऑफिस, एक ही बिल्डिंग में 2 ब्रांच बनाए रखे हो तो दोनों ब्रांच का एक ही इंचार्ज चलेगा। With regard to the use of name board, there will be no bar to the putting of a name board in the place of residence of a member with the designation of chartered accountant, provided it is a name plate or a name board of an individual and not a firm। यानी कि आप आपके घर के बाहर CA आपका नाम लिख सकते हो, लेकिन आप घर के बाहर आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं लिख सकते। से फॉर एग्जांपल आप
मेरा नाम है सी ए, तो सी ए कल्ब शाह, ये मैं मेरे घर के बाहर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सी ए कल्ब शाह एंड एसोसिएट्स एंड शाह एंड पटेल एसोसिएट्स या शाह एंड अग्रवाल एसोसिएट्स, ऐसा मैं मेरे घर के बाहर नहीं लिख सकता हूँ. Mr. X and Y are partners of a CA firm, one in charge of head office and another in charge of a branch at a distance of 80 kilometers from the municipal limits. एक दो बंदे, एक है हेड ऑफिस का इंचार्ज है और दूसरा है वो ब्रांच जो 80 किलोमीटर से आई, पहली जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की म्यूनसिपल लिमिट से 80 किलोमीटर दूर है. पुट्स अप अ नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन बोथ प्रीमाइसेस एंड ऑल्सो इन देयर रिस्पेक्टिव रेसिडेंसेज. अब वो उसके घर के बाहर फर्म का नाम लिखता है, वो चाहे 80 किलोमीटर फर्म दूर हो या 100 किलोमीटर दूर हो. वो अभी इसमें नहीं प्रॉब्लम, इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. आपको नीचे लिखा होगा 50 किलोमीटर के अंदर एक ही इंचार्ज होगा तो चलेगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन का चीज़ का है, उसने अपने घर में फर्म का नाम का नेम प्लेट या फिर बोर्ड रखा, तो वो नहीं चलेगा. द काउंसिल इन द गिवन केस पार्टनर put a name on board of the firm in both the offices and also their respective residences. फर्म पे लिख सकते हैं लेकिन घर पे नहीं लिख सकते, तो सो दे आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. डिस्टेंस गिवन इन नॉट, क्वेश्चन इज नॉट, अब डिस्टेंस अब रिलेवेंट होगा. द एग्जाम्शन में बी ग्रांटेड टू अ मेंबर और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस टू हैव अ सेकंड ऑफिस विद सच विदाउट सच सेकंड ऑफिस बीइंग अंडर अ सेपरेट चार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. अगर सेपरेट चार्ज नहीं देंगे तो भी चलेगा, अलग ऑफिस का, सेकंड ऑफिस का. कब? द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड इन द सेम प्रीमाइसेस इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड. अगर एक ही बिल्डिंग है, आप समझ लो कि आपका कोई शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग सेंटर का नाम है गीता शॉपिंग सेंटर. गीता शॉपिंग सेंटर में फर्स्ट फ्लोर पे आपकी एक ऑफिस है और दूसरी ऑफिस 5th फ्लोर पे. तो फर्स्ट फ्लोर पे आपके 4 आर्टिकल बैठते हैं, 5वें फ्लोर पे दूसरे 4 आर्टिकल बैठते हैं. फर्स्ट फ्लोर पे बैठे वो टैक्स का काम करते हैं, 5th फ्लोर पे बैठ रहे वो से फॉर एग्जांपल जीएसटी का, यानी कि इनकम, फर्स्ट वाले इनकम टैक्स और 5th वाले जीएसटी का काम कर रहे हैं, तो चलेगा. और आप दोनों आर्टिकल, दोनों फ्लोर्स के आर्टिकल्स को आप ही मैनेज कर रहे हो, आप ही इंचार्ज हो, फर्स्ट फ्लोर वाले और 5th फ्लोर वाले, तो चलेगा. The second office is located in the same city in which the first office is located, or the second office is located within a distance of 50 km from the municipal limits of the city in which his फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड. या तो आप दूसरी ऑफिस खोलना चाहते हो तो आप अपनी ही सिटी में खोल दो. से फॉर एग्जांपल मुंबई कितना बड़ा है, मुंबई खुद 100 किलोमीटर से ऊपर का होगा, तो आप भले ही वो 100 किलोमीटर की लिमिट में से के अंदर, लेकिन एक ही सिटी में ना, तो चलेगा. या तो फिर जो मुंबई सिटी की म्यूनसिपैलिटी की लिमिट है, बाउंड्री है, उससे 50 किलोमीटर तक आप कोई दूसरी ब्रांच खोलते हो और आप एक ही इंचार्ज हो तो चलेगा. क्या लिखा है? फर्स्ट हेड ऑफिस, या तो आप दूसरा उसी प्रीमाइसिस में ले लो, उसी कॉम्प्लेक्स में, उसी शॉपिंग सेंटर में ले लो दूसरी ऑफिस, या तो फिर सेकंड ऑफिस आपकी सिटी में ही ले लो. द सेकंड ऑफिस लोकेटेड इन द सेम सिटी इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड. फर्स्ट ऑफिस इज से फॉर एग्जांपल इन बांद्रा, सेकंड ऑफिस इज से फॉर एग्जांपल इन मुंबई सेंट्रल और चरनी रोड. और एग्जांपल फर्स्ट इन अहमदाबाद केस फर्स्ट ऑफिस इज सीजी रोड, अनदर ऑफिस इज नरोडा, तो चलेगा. या तो फिर आपकी जो बाउंड्रीज है सिटीज़ की, म्यूनसिपल बाउंड्री, उसके 50 किलोमीटर तक चलेगा. से फॉर एग्जांपल अब मुंबई की बाउंड्री हो जाती है ख़त्म, से फॉर एग्जांपल वसई, तो वसई से 10 किलोमीटर के अंतर या 50 किलोमीटर के अंतर तक चलेगा. लेकिन मुंबई के केस में इतना बड़ा सिटी है तो कैसे वो मैनेज कर पाएगा, वो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखना पड़ेगा. अब देखो ये 15 किलोमीटर, ये जो एक सिटी है, सिटी एक्स सिटी वाई, तो पहली हेड ऑफिस क्या है, सिटी के अंदर 15 किलोमीटर जाने के बाद इसकी ऑफिस आती है, और दो सिटी के बीच का अंतर है 35 किलोमीटर. ये करीबन समझ लो ना अहमदाबाद जैसा हो गया. अहमदाबाद में 15 किलोमीटर में ऑफिस आ गई है, ये इसकी सरखेज उजाला चौकड़ी पे, उजाला सर्कल पे आ गए. उजाला सर्कल से बाउंड्री आते आते ही 15 किलोमीटर हो जाते हैं, और वहाँ से गांधीनगर जाने के लिए और 35 किलोमीटर हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, तो 35 लिखा है आने पे. और दूसरी ब्रांच ऑफिस ऑफ गांधीनगर के अंदर में सेक्टर 28 में 10 किलोमीटर पे है. तो अब क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, पहले तो अहमदाबाद के एक एरिया से उसकी बाउंड्री तक जाने का 15 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर दो सिटी का अहमदाबाद और गांधीनगर का डिस्टेंस 35, और गांधीनगर के अंदर भी उसकी 10 किलोमीटर ऑफिस है, तो 35 + 15. क्या लिखा है क्लॉज, क्या लिखा है, द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ अ सिटी इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड. तो इसकी म्यूनसिपल लिमिट्स का यहाँ पे है, तो 35 और 10, तो यह कि 35 और 10 40 किलोमीटर तक चलेगा.
ये 15 को इग्नोर करो, ये 15 का कोई काम नहीं है। भले ही प्रैक्टिकली ऐसे तो मुंबई में गिने तो ये 80 हो जाते। मुंबई सेंट्रल से आप गिन लो मुंबई वसई या फिर कुछ नाला सोपारा तक तो 80 किलोमीटर तक भी हो जाता है। फिर वहाँ से 50 गिनेंगे तो कितना सारा 120 जैसा हो जाएगा। तो वो नहीं, वैसे नहीं चलना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में चलेगा। ठीक है, तो इसका ये केस है। और आगे क्या लिखा है, अ मेंबर हैविंग टू ऑफिसेज ऑफ द टाइप रेफर टू अबव शैल हैव टू डिक्लेयर विच ऑफ द ऑफिस इज द मेन ऑफिस एंड विच ऑफिस इज द सेकेंडरी ऑफिस विच वुड कंस्टिट्यूट एज प्रोफेशनल एड्रेस। और उसको बताना पड़ेगा कि दोनों में से मेन ऑफिस कौन सी है और उसमें से उसका प्रोफेशनल एड्रेस कौन सा माना जाएगा। तो इसके लिए केस लॉ बना था, वो आप देख सकते हो नवंबर 2018 में ब्रांच और फैसिलिटेशन सेंटर का 2D, नवंबर 2018 2D। जी ये 2D वाला क्वेश्चन है, नवंबर का नहीं है, मई 2018 2D क्वेश्चन आप देख सकते हो। मई 2018 का पेपर है, मई 2018 न्यू कोर्स 2D में ये ब्रांच वाला क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और आपको ये करके ही जाना है। मिस एम कंपनी a sole proprietary chartered accountant firm in practice with an office in a busy belt of city had great difficulty in regularly attending the consultancy needs of his clients who are mostly located in industrial cluster in a nearby outskirt which is situated at a distance of 26 km from the office of the firm। ऑफिस से तो सिर्फ 26 किलोमीटर ही है, म्यूनसिपल वैसे तो 50 किलोमीटर म्यूनसिपैलिटी की बाउंड्री से देखने तो ऑफिस से सिर्फ 26 किलोमीटर है। तो ये वाला तो क्लॉज उसका फुलफिल हो गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि टू मिटिगेट द डिफिकल्टी एंड टू हैव ईज ऑफ बिजनेस ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर वाज open in the industrial cluster. The proprietor managed both the office and facilitation center by himself. No intimation was made to the Institute of Chartered Accounts. तो यहाँ पे जो no intimation of the made है वो उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया। उसको बताना होगा उसकी मेन ऑफिस कहाँ पे है और उसका प्रोफेशनल एड्रेस कौन सा रहेगा। एग्जामिन वेदर देयर इज एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो आप ये मई 2018 का आंसर देखते हैं। May 2018 suggested new। जी यही क्वेश्चन है। एम एन का बिजी क्लस्टर, बिजी बेल्ट ऑफ अ सिटी और उसको इंडस्ट्रियल क्लस्टर में ब्रांच खोलनी है, लेकिन उस ब्रांच का अंतर सिर्फ 26 किलोमीटर है तो चलेगा। लेकिन उसने वो बताया नहीं ना कि भैया मेरी मेन ऑफिस कहाँ रहेगी और मैं उसको मैं प्रिंसिपल प्रोफेशनल एड्रेस मानूंगा। देखो आप यहाँ पे बोलो क्या लिखा है, वुड कॉन्स्टिट्यूट हिज प्रोफेशनल एड्रेस। तो उसको बताना भी पड़ेगा कि उसका प्रोफेशनल एड्रेस कौन सा रहेगा। आप पूरा केस पढ़ लो, उसमें उन्होंने लास्ट लाइन में क्या लिखा है, चार्टर्ड अकाउंट फर्म इन प्रैक्टिस विद एन ऑफिस BC बेल्ट ऑफ अ सिटी एंड हैड अ ग्रेट डिफिकल्टी इन therefore a facilitation center was opened in the industrial cluster and proprietor is maintaining both the office and a facilitation center, though distance between his office and facilitation center is sort of second office is within prescribed range 50 km, but M&M company will be liable to professional misconduct as prescribed intimation about। उन्होंने क्या नहीं दिया, इंटीमेशन अबाउट फैसिलिटेशन सेंटर एंड मेन ऑफिस शुड बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट। कौन सा मेन ऑफिस रहेगा और कौन सा फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा और आपकी उसमें प्रोफेशनल एड्रेस कौन सा रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये एक छोटा से लाइन पे इसका आप समझ लो कितने मार्क्स होंगे। 4 मार्क्स में पूछा होगा या 5 मार्क्स में। 5 × 4 तो 5 मार्क्स का पूछा था ये। सिर्फ आपको पूरा ये रीडिंग का कमाल है, आप पूरा रीड करो, आधा अधूरा मत रीड करो, ठीक है।
तो इसका केस स्टडी तो ये वाला है जिसमें वो 30 किलोमीटर के अंदर लेता है, तो वो गिल्टी नहीं है। ये वाला केस में तो कुछ नहीं है कि वो इतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं पूछा है, फिर भी पर लेट है। मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एज अ सोल प्रोप्राइटर एट चेन्नई हैज एन office in the suburbs of Chennai. Due to increase in the income tax work, he opens another office near the income tax office, which is within the city and at a distance of 30 kilometers from his office in the suburb. Within city होता तो चलता ही है, और outside city होता तो भी city के म्यूनसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ही हैज़ एम्प्लॉयड अ रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर वो इज़ नॉट अ सीए, तो चलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर केवाईसी करनी होती है। केवाईसी जब आई थी तब उन्होंने ओल्ड कोर्स में एक बार पूछी थी, तो नए कोर्स में अब एक बार पूछ सकते हैं। तो केवाईसी क्लाइंट की कहेंगे, वेर द क्लाइंट इज अ इंडिविजुअल, उसमें उसका नाम, पान नंबर, आधार कार्ड नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ एंगेजमेंट। फिर वो कंपनी हो तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, नेम एंड पेरेंट कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी इसकी कोई है तो होल्डिंग कंपनी का नाम। फिर कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीन नंबर, पान नंबर, डायरेक्टर्स का नाम और पता, डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी नंबर। वेर क्लाइंट इज अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, यानी कि कोई ट्रस्ट वगैरह हो या तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटिटी, पान नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, पार्टनर नेम एंड एड्रेस इज लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग देखेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था, तो फर्स्ट लेक्चर 1 घंटे का हुआ है, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाइए और हमारी नई अपडेट्स पाते रहिए। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आपका प्रतिभाव देना, आपका रिव्यू देना ना भूलें। थैंक यू।